So today we are going to discuss the image formation by spherical lenses using the रे डायग्राम. अब रे डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स अप्लाई करते हैं. व्हाट आर दोज रूल्स? सो वी आर टेकिंग दोज रूल्स ऑल्सो एंड देन वी विल प्रैक्टिस द रे डायग्राम्स ऑल्सो. सो फर्स्ट रूल इज द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. We have taken here the ray, this is principal axis, the ray parallel to the principal axis. After the refraction, it passes through the focus. It is going through the focus. Another ray for concave lens, the ray which is going parallel to the principal axis, it will appear to come from focus like this. And it will be refracted like this. So it is appearing to come from focus in case of concave lens. Again, ray parallel to the principal axis passes through the focus. The ray parallel to the principal axis appears to come from focus in case of concave lens like this. Yeah, this way. Now, ray passing through the principal focus. What we will do is, suppose a ray has been taken which is passing through the principal focus like this. What will happen? It will become parallel to the principal axis after the refraction. And here, it has become parallel to the principal axis. It was going to the focus, appearing to go to the focus. This becomes parallel to the principal axis in case of concave lens. So the ray which is going towards the focus goes straight parallel to the principal axis. In case of convex lens, it goes parallel. In case of concave lens, it comes to the focus, appears to come to focus, but passes parallel to the principal axis. The third case is the ray when passing through the optical center. We have taken any of the ray which is going through the optical center. It will go straight. The ray going through the optical center will go straight. So we have taken the ray which is going through the optical center. Straight it goes undeviated. Straight it goes undeviated. In this case also, the ray is coming, it will go straight undeviated in case of concave lens also. Because it is coming with an angle of incidence 0. I is 0 for the ray which is coming from in the direction of optical center. So this is the optical center, it goes straight. The ray goes straight. So using either of these two rays, any of the two rays out of these three, we will be forming the ray diagram for the lens, convex lens and concave lens. So this is the first case when the object is at infinity. What is going on here? The rays coming parallel to the principal axis, they all will be converging at focus. So all the rays will pass through the focus like this. And all the rays are crossing each other at focus. Image is formed at focus. Focus क्या करने का है? जितनी भी रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है उनको फोकस पे मर्ज करा पास करा देना है फोकस से. दे विल पास थ्रू द फोकस. फॉर्म्ड एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट शेप. इसी में सेकंड केस, सपोज द रेज आर कमिंग अ बिट inclined to the principal axis at an angle. What they will do? They will go like this.
like this. And suppose this is the focus. Here we are drawing the focus. What they will do? The ray will go parallel to the principal axis below the focus and they will meet here like this. Here this way. Image is formed at focus, focal plane. Arrows are there which are showing the direction of the rays. The ray passing through the center of curvature, optical center, will pass straight. So image is formed at focal plane, real, inverted and diminished. So this way, the first case we have done, image object is at infinity. Our second case is when the object is beyond 2f. क्या होता है इसमें C होता अपना कॉन्केव मिरर में अपन यहाँ पे F लेते थे, यहाँ C लेते थे. We used to take F and C. इस C की जगह पे हम 2F ले रहे हैं, यहाँ पे हम 2F लेंगे. लेंस बनाया मैंने, बहुत ध्यान से देखिए. आप लोग तो स्केल वगैरह लेके बनाओगे, बहुत अच्छे से बनाओगे. नाउ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O. F मैंने कंसिस्टेंट डिस्टेंस पे, सफिशिएंट डिस्टेंस पे F ले लिया. Now equal to this, that is 2F, object taken beyond 2F, the ray parallel to the principal axis. अच्छा, जितना इस तरफ लूंगा उतना ही इस तरफ लूंगा, तो एक F हुआ, दूसरा क्या हो गया? F dash. This is 2F dash. The ray parallel to the principal axis will pass through the focus. Focus से उसको गुजारना है, कहां से? मिड पॉइंट ऑफ द लेंस से, ये मिड एक्सिस ऑफ द लेंस से, ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है ना, उससे. नाउ द रे गोइंग थ्रू दी फोकस, ये जा रही है फोकस से. कहां मर्ज होगी, कहां मिलेगी इससे? देखिए, इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. वेयर द इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड 2F. वैसे भी इसका एक सिंपल फंडा है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, इमेज बिटवीन F एंड 2F बनेगी. जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F है, इमेज बियॉन्ड 2F बनेगी. दिस इज द रूल. सो हियर इमेज इज फॉर्म between F and 2F, real, inverted, diminished in size. F और 2F के बीच चाहे ऑब्जेक्ट रहे चाहे इमेज रहे, F और 2F के बीच यहां जो भी रहेगा वो छोटा रहेगा. रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, स्मॉल इन साइज. थर्ड केस अब हम जो लेने जा रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट को 2F पे ही रख देंगे हम. Our third case, when the object lens are drawn, principal axis are drawn. प्रिंसिपल एक्सिस को सिमेट्रिक बनाना रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे दोनों के हिसाब से. See now optical axis, suppose this is F, this is O, this is 2F. Similarly, F dash, this side and this side, 2F dash. Object is at 2F. हमने 2F पे ही ऑब्जेक्ट को ले लिया है. द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी सिंपल फंडा. द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू दी फोकस. फोकस से इसको गुजार दूंगा मैं, ये गई. Another ray which is going through the focus this way, it will go parallel to the principal axis. और हमको ध्यान रखना है कि इसको हमको यहां मीट कराना है below 2F. See how I am matching like this. Where the image is formed,
at 2f itself. Size of image is equal to size of object. Both are equal. So image is formed at 2f real, 2f on other side of the lens, on other side of the lens, other side of the lens, real, inverted, equal size. हमने अभी 3 केसेस को देखा बच्चों. When the object is at infinity, image is formed at focus. जो रेज इंक्लाइंड आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से एट एन एंगल, they also form the image at focus only, that is focal plane. फोकस के प्लेन पे बनाती है. ऐसा प्लेन जो फोकस पे है उसको फोकल प्लेन बोलते हैं. रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड. When the object is beyond 2f, image is formed between f and 2f. Though rays are parallel to the principal axis, passes through the focus, the ray passing through the focus will become parallel to the principal axis. So image is formed between f and 2f. Real, inverted, diminished. Third case, at 2f, object, image at 2f. इसमें उल्टा भी होता है. Object at this 2f, image at this 2f. So both the ways it goes. So image is formed at 2f on the other side of the lens, real, inverted and of equal size. Now, fourth case is when the object pin is between f and 2f. f and 2f के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया. The ray parallel to the principal axis, जैसा हमने लर्न किया है, it will pass through the focus. So focus से ray निकल गई. Another ray which is going through the optical center will go straight. And to start the ray, should pass through the optical center, should go straight. Where it is forming the image? It is forming the image beyond 2f. You can see it is forming the image beyond 2f like this. ये 2f डैश है. 2f डैश के बाहर बन रहा है इमेज और बड़ा साइज का बन रहा है. तो ये like this. So image is formed beyond 2f, real, inverted and magnified. बड़ा बन रहा है, साइज बड़ा बना है रे का. जहां इंटरसेक्ट करती दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, वहां इमेज बनेगा. नेक्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ. हमने इमेज को ऑब्जेक्ट को लिया फोकस पे. रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू दी फोकस. इसको फोकस से मैंने गुजार दिया. दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेट टू दी ऑप्टिकल सेंटर. स्केल से लेके इसको मेजर करके बनाना. आप देखेंगे इट इज गोइंग स्ट्रेट. दिस बोथ द रेज आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर एंड they appear to meet at infinity. Infinity पे meet करेगा ये. So the image is formed at infinity. Image at infinity. Real क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है उल्टा. Real, inverted और highly magnified. Now this gives me the use to throw the light ray till maximum distance as a reflector, as a parallel beam. Next one is when the object is between optical center and focus. So this is focus, this optical center, the object is here. I am taking one ray parallel to the principal axis. It will pass through the focus. Passed. Another ray which is going through the optical center, it will go like this, straight. But you can see that these two rays are going apart.
नॉट मीटिंग, अलग अलग जा रहा है, दे विल नॉट मीट। तो जब इधर कहीं नहीं मिलेगा तो पीछे हम इसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। एक्स्ट्रापोलेट यानी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बढ़ाना, एक्स्ट्रापोलेट मतलब पीछे बढ़ाना, मैंने बढ़ाया तो मुझे इमेज यहां कहीं पे मिला, ये वाला। दिस इज वर्चुअल इमेज, मैग्निफाइड इमेज, and on the same side of the object, on the same side of object. So this way we have got the image on the same side of the object. ये है 6 केसेस। तो पहला केस हमने डिस्कस किया था जिसमें ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था, इमेज एट फोकस था। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, इमेज बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट एट 2f, इमेज एट 2f। जब 2f पे है इक्वल और दोनों इक्वल, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं 2f वाले एप्लीकेशन पे बेस्ड, थोड़े कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट और इमेज एट 2f वाला काम हो गया। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, जब ये f एंड 2f के बीच है तो इमेज कहां होगा, बियॉन्ड 2f। इमेज विल बी बियॉन्ड 2f, 2f के बाहर आ जाएगा इमेज। और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज बिटवीन f एंड 2f, ये वाइस वर्सा है। नेक्स्ट केस व्हेन, अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज कहां बना था, फोकस पे। अब आ रहा है उल्टा केस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी। और ये लास्ट केस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस को एक मैग्नीफायर के रूप में कैसा यूज करना उसको बताता है। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बिटवीन O एंड F रखते हैं, इसका वर्चुअल इमेज हमको मैग्नीफाइड इसी तरफ मिलता है, वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इरेक्ट है ना, इन्वर्टेड नहीं है ये, इरेक्ट एंड ऑन सेम साइड, इरेक्ट इमेज बन रहा है ये सीधा, जिस तरफ इरेक्ट मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ही तरफ। तो इस तरह से हमने लेंस के 6 डायग्राम्स को देखा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैग्निफिकेशन। Sign convention of the lens is very much similar to the sign convention of mirror. This optical center, all the distances are to be measured from the optical center. The direction of the rays, suppose direction of the distance if taken opposite to the propagation of the ray, yani ray is always incident, object is always taken on the left hand side, or ray is always incident from the left, it moves towards the right. So the distances measured against the direction of the ray, यानी रे जा रही है इधर और आप मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर के इस तरफ, तो ये सभी डिस्टेंसेस निगेटिव होती है, इधर की सभी डिस्टेंसेस निगेटिव होंगी, इधर मेजर की गई सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। ऊपर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव, जैसा मिरर उसमें था कन्वेंशन में, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी निगेटिव। दिस वे द साइन कन्वेंशन इज यूज्ड फॉर द लेंस। इसमें एक सबसे बड़ी बात याद रखना है, मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था, हम एक वर्ड याद रखते हैं कॉन्वेक्सिटिव। कॉन्केव में कॉन्केविटिव नहीं होता है ना, कॉन्केव में निगेटिव से मैच होता है उसका जो टोन है, आप याद रखें तो। और कॉन्वेक्सिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉनकेव का निगेटिव होता है। आप चाह के भी कॉनकेव से सिटिव नहीं निकलवा सकते, पॉजिटिव का सिटिव, इसलिए कॉनकेव का निगेटिव फोकल लेंथ लेते हैं हम, ठीक है। ये ट्रिक है इसका याद रखने का, कॉन्वेक्सिटिव। ये एक्सपो जो है साइलेंट है, ये कॉन्वेक्सिटिव, ठीक है। तो कॉन्वेक्स, पॉजिटिव, ये याद रखने का है। हमने अभी देखा साइन कन्वेंशन, अब है लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स? इट इज वेरी मच सिमिलर टू द मिरर फॉर्मूला, ओनली द डिफरेंस इज
1 by v minus 1 by u equal to 1 upon f. This is the Lenz formula. This Lenz formula should be by hearted by you all people. और याद रखना चाहिए इसको. इसका डेरिवेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने अभी कॉमन बनाया है 8th, 10th और 12th तीनों क्लासेस के बच्चों के लिए, और सभी को बेसिक नॉलेज जरूरी है, सब क्लास में यूज आएगा, इसलिए इसमें यहां पे हम रुक रहे हैं. इसका डेरिवेशन आई विल बी गिविंग इन द नेक्स्ट वीडियो. आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप लोग ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले, आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिले और मैं आप लोगों तक अच्छे अच्छे वीडियोस भेजता रहूं और आप लोगों का कोर्स मैं समर एंड के पहले कंप्लीट कर दूं. मेरा ये एक विश है. आई विश दैट योर कोर्स शुड बी डन बिफोर द समर एंड. दूसरा, शेयर करें अपने दोस्तों से, जितने भी दोस्त हैं, जो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं जो भी 8th, 10th और 12th में हैं, उनसे आप शेयर करें, इसको वीडियोस को शेयर जरूर करें. नेक्स्ट इज, आफ्टर द Lenz formula we see magnification, and what is the magnification of Lenz is m is equal to v by u is equal to height of image upon height of object. ये मैग्निफिकेशन है. ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू वी बाई यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, है ना, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें h डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज है, और h क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है. मैं इसको i अपॉन o भी लिखता हूं कभी कभी. आई कैन राइट इट i अपॉन o. तो i से मुझे इमेज का भान होता है और o से मुझे ऑब्जेक्ट का भान होता है, लाइक दिस, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. दूसरा, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज इन माइनस निगेटिव, मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव. चलिए, मैग्निफिकेशन के बाद अब हम करते हैं पावर ऑफ द लेंस. एक फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने का है. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस इज, पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. ये तब है जब फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, और 100 अपॉन एफ व्हेन एफ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर. ये याद रखने का है. तो पावर ऑफ द लेंस इज 1 अपॉन फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का इन्वर्टेड होता है व्हेन इट इज मेजर्ड इन मीटर, एंड व्हेन इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर तो हम क्या लिख देंगे, 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर. एक इसमें खास चीज और बता दो बच्चों, यदि 4-5 लेंसेस को हमने एक साथ मिला के रख दिया तो इनका जो नेट पावर है, सपोज 3 लेंस 4 लेंस व्हाटएवर, तो जितने भी लेंसेस मैंने मिलाया, नेट पावर इज इक्वल टू sum of the power of the lenses, individual power of the lenses. This way it goes on. और पावर का ऐसा यूनिट है डायोप्टर. सो रिमेंबर डायोप्टर वर्ड, और ये न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होगा, है ना. दिस वे वी हैव डन द ऑप्टिक्स विच इज यूजफुल फॉर क्लास 8th, 10th एंड इक्वली फॉर 12th. अब जो अगला मेरा एपिसोड ऑप्टिक्स पे रहने वाला है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, वो एक्सक्लूसिवली फॉर 12th एंड जेई और नीट के बच्चों के लिए रहेगा. ये सभी के लिए कॉमन था, इसलिए एक कॉमन हमने इसको बनाया 8th, 10th और 12th. यू प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.